Good morning, dear students. In the previous lectures, we derived three equations of motions. Then we solved certain examples based on those three equations of motion. Today, we are going to solve certain unsolved in-text questions. Okay? Again, these questions are based on the equations of motions that we just derived. These in-text questions are from page number 109. So from those in-text questions of page number 109, this is question number 1. Let us understand the question. A bus starting from rest moves with acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक जो बस है वो स्टार्ट करती है फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट. नाउ व्हेन द बस और एनी अदर ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड. ओके, नाउ इट मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन. तो a की वैल्यू हमको दी हुई है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फॉर हाउ मच टाइम? फॉर 2 मिनट्स. सो टाइम t is equal to 2 minutes. I have to convert it into second. So this is equal to 2 into 60, यानी कि 120 सेकंड. तो हमारे पास कौन सी चीज है? हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट. सो u is 0 मीटर पर सेकंड. It is moving with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू होगी 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और टाइम कितना है? 2 मिनट्स. इसको सेकंड में हमने कन्वर्ट किया तो हुआ 120 सेकंड. यूजिंग दिस मच डेटा, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द स्पीड अक्वायर्ड. स्पीड अक्वायर्ड यानी इतने मिनट 2 मिनट ट्रैवल करने के बाद उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो हमको फाइंड करना है. सो हियर v इस क्वेश्चन मार्क वी नीड टू फाइंड एंड वी आल्सो नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 2 मिनट के दौरान. ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस 2 मिनट्स how much distance has been covered by the bus. So distance covered, that is s. So in short, using the data given over here, I need to find the value of v and s. तो सबसे पहले बात करते हैं v की. तो आपको एक्सेलरेशन की फॉर्मूला मालूम है, a is equal to v minus u upon t. Okay, now we have value of a, we have value of u, and we also have value of t. So using that we will get the value of v. So let us put the values. Acceleration a, उसकी value है 0.1. So 0.1 is equal to v. Final velocity जो हमको find करनी है. So I will leave v as it is minus u. U means initial velocity. Initial velocity is 0. So it will be 0 upon time t is 120 seconds. So I have 120. So now when you cross multiply, you have 0.1 into 120 is equal to v. So therefore final velocity when 0.1 is multiplied by 120, the final velocity acquired will be 12 meter per second. तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिराइव कर दिया. फाइनल वेलोसिटी और द स्पीड acquired by the bus during that 2 minutes when it moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square will be 12 meter per second. अभी हमको दूसरा क्या फाइंड करना है? हमको दूसरा फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड. तो हमारे पास फॉर्मूला है v square minus u square is equal to 2s. सो उसमें से s को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे तो आएगा v square minus u square upon 2a. सो लेट अस पुट द वैल्यूज. v की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है. सो दिस इज 12 होल स्क्वायर minus initial velocity u, that is 0 whole square upon 2 into 0.1. एक्सेलरेशन है 0.1. तो ये 12 का स्क्वायर होगा 144 माइनस 0 तो वैसे क्या वैसे रहेगा अपॉन 0.2. ओके, अभी ये जो 0.2 है अगर मुझे उसको 2 करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा. तो वो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये होगा 144 into 10 अपॉन 2. क्यों? क्योंकि मैंने 0.2 का 2 किया यानी इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 किया. तो इफ आई मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 10 I have to multiply numerator by 10. अभी तो सम एकदम इजी हो जाएगा.
ये 2 कट होगा, 142 4 डिवाइड बाय 2 होगा 72 into 10, यानी कि हमारी जो बस है उसने जो डिस्टेंस कवर किया है that is 720 meters. So we got our both answers, that is the speed acquired is 12 meter per second and distance traveled during that time, that is S, is 720 meters. Okay, so now we will solve one more in-text question. Again, these questions are also based on the equations of motions. So let us understand the question. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. So this gives us the initial velocity of the train. Initial velocity of train is denoted by u. So I will begin the sum with value of u as 90 km per hour. Now, just as we did in the previous sums, we need to convert this kilometer per hour into meter per second. Okay? So what we did? What we do? We multiply with 1000 and divide with 3600. So obviously, the zeros got cut. 9 4s are 36 and 100 upon 4. So initial velocity of the train is 25 meter per second. Okay? Now what we do? Brakes are applied so as to produce acceleration of minus 0.1 meter per second square. Again हमने previous lectures में डिस्कस किया है कि जब स्पीड डिक्रीज होती है, ऑब्वियसली जब आप किसी भी व्हीकल पे, ट्रेन हो, बस हो, कार हो, स्कूटर हो, बाइसिकल हो, when brakes are applied, then generally the speed will decrease, and when the speed decreases, it produces a negative acceleration. तो यहाँ पे भी ट्रेन जो इनिशियली ट्रैवल कर रही थी 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, जिसको मैंने कन्वर्ट किया इन मीटर पर सेकंड, दैट इज 25 मीटर पर सेकंड. नाउ ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन हैज बीन प्रोड्यूस. कितना प्रोड्यूस होता है? तो वैल्यू ऑफ a is minus 0.5 meter per second square. Okay? Now find how far the train will go. How far the train will go. यानी हमको क्या फाइंड करना है? How much distance is covered by the train. And for distance covered, we take the symbol S. So in short, in this particular sum, I have to find the value of S. Okay? Before it is brought to rest. यानी कि what is the final position of the train? At final moment, the train should be at rest, means its final velocity should be 0. So final velocity, which is denoted by v, is 0 meter per second. So once again क्वेश्चन को समझ लेते हैं. हमारे पास एक ट्रेन दी हुई है which is traveling at the speed of 90 किलोमीटर पर आवर. तो ये 90 किलोमीटर पर आवर है, ये है ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी. सो u is 90 किलोमीटर पर आवर. लेकिन जैसे कि हमको पता है कि हमको इस न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए ऑलवेज स्पीड इनिशियल हो या फाइनल हो, उसको ऑलवेज कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकंड. So when I converted into meter per second, I got the value of initial velocity u as 25 meter per second. फिर क्या होता है? Brakes are applied. तो जब brakes apply हुई तो it produced a negative acceleration. Acceleration की वैल्यू कितनी दी हुई है? That is minus 0.5 meter per second square. Okay. Find how far the train will go. How far the train will go means distance traveled by the train. So S is question mark. Before the train is brought to rest, यानी कि फाइनल वेलोसिटी that is denoted by v, उसकी वैल्यू होगी 0 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे. S is equal to v square minus u square upon 2a. Okay, let us put the values one by one. So v square, v यानी फाइनल वेलोसिटी जिसको हमने कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकंड में, its value is 25. So here I will have 25 whole square minus u. u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है 0 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 0 होल स्क्वायर माइनस 25 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a एक्सेलरेशन नेगेटिव कितना है माइनस 0.5 so here I will have minus 0.5 okay now square of 0 is 0 25 का स्क्वायर होगा 625 2 into minus 0.5 will give me minus 1 so this value is minus 625 upon minus 1 माइनस माइनस दोनों तरफ से कट हो जाएगा तो आंसर होगा 625 मीटर्स यानी कि बिफोर द ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट इट विल हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 625 मीटर ओके तो फिर से u की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल दैट इज s और जो फाइनल वेलोसिटी है v उसकी वैल्यू है 0 हमको s फाइंड करना है तो s फाइंड करने के लिए हमने क्या किया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a v यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो रेस्ट वाली पोजीशन है यानी 0 होल स्क्वायर माइनस u u यानी इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे थी 25 मीटर पर सेकंड तो 25 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन a तो जो एक्सेलरेशन a है उसकी वैल्यू है माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नाउ व्हेन यू पुट द वैल्यू स्क्वायर ऑफ 0 इज 0 माइनस स्क्वायर ऑफ 25 इज 625 अपॉन 2 into minus 0.5 2 into minus 0.5 करेंगे तो आएगा minus 1 so in short I have minus 0 minus 625 that is minus 625 upon minus 1 minus minus हो गया कट यानी हमारा जो फाइनल आंसर है that is the train will travel the distance of 625 meter before it is brought to rest जैसा कि हमने अगले सम में भी डिस्कस किया था कि जब भी ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो जो व्हीकल है वो तुरंत स्टॉप नहीं होता इट ट्रैवल्स सर्टेन डिस्टेंस बिफोर इट कम्स टू रेस्ट so in this particular case when the train is moving at the speed of 90 km per hour when the brakes are applied and a negative acceleration of minus 0.5 meter per second square is produced then train will travel approximately 625 meter before it is brought to rest. Okay dear friends, now we'll solve the third question from the in-text part. This is very simple question and very easy to solve. Just understand what is given here. A trolley while going down an inclined plane. Inclined plane यानी जो ऐसा ढाल रहता है, ओके? ऐसे सरफेस को inclined plane कहते हैं. तो इस inclined plane से एक ट्रॉली है वो नीचे आ रही है. It has an acceleration of 2 centimeter per second square. It's not meter. It's 2 centimeter per second square. What we need to find? What will be its velocity 3 seconds after the start? यानी कि उसको हमने ऊपर से इंक्लाइन प्लेन से रिलीज किया तो आफ्टर 3 सेकंड उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये हमको फाइंड करना है ठीक है अब सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए उसकी वैल्यू हमको दी है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बट वी ऑल नो दैट जो एक्सेलरेशन होता है उसका स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसको हमें पहले कन्वर्ट करना होगा इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बिफोर वी यूज द एक्चुअल फॉर्मूला ओके तो वी ऑल नो 100 सेंटीमीटर मेक्स 1 मीटर तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो होगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये जो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसको हमने डिवाइड किया बाय 100 एंड कन्वर्टेड इनटू 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये वो हमारा एक्सेलरेशन ठीक है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स यानी जो टाइम t है दैट इज 3 सेकंड ओके व्हाट विल बी वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ये जो ट्रॉली है जब हम उसको रिलीज करेंगे देन इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वी रिप्रेजेंट इट एज u तो यहां पे
u की वैल्यू होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ हमारे पास है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a, हमारे पास है वैल्यू ऑफ टाइम विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल t, वी आल्सो हैव वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u, वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी दैट इज v। तो हमारे पास एक बहुत ही इजी वाली फॉर्मूला है, कौन सी फॉर्मूला है, v माइनस u इज इक्वल टू at, ये फॉर्मूला है। v हमको फाइंड करना है, तो v विल रिमेन एज इट इज माइनस u दैट इज 0 इज इक्वल टू a, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.02 इनटू टाइम दैट इज 3 सेकंड्स। सो v में से जब 0 माइनस होगा तो ऑब्वियसली आई विल हैव v इज इक्वल टू 0.06 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब इस ट्रॉली को हम इंक्लाइन प्लेन से रिलीज करेंगे तो आफ्टर 3 सेकंड, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी, बट नाउ इट इज अंडरगोइंग एक्सेलरेशन, सो नाउ आफ्टर 3 सेकंड इट्स वेलोसिटी will be 0.0 meter per second. So as you can see, all these sums are very easy, very simple. Today in this lecture we have solved 3 in-text questions. Total 5 in-text questions are there. ठीक है, हमने क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 2 किया, क्वेश्चन 3 किया। जो क्वेश्चन 4 है that is also based on the sums that we have discussed. अभी तक हमने जो sums डिस्कस किए हैं उसी के हिसाब से है। So what I want you to do is, ये जो 4th क्वेश्चन है उसको आपको खुद सॉल्व करना है और उसका आंसर आपको इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें डालना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी का सम है इन-टेक्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। फिर एक टॉपिक है जो चैप्टर का जो आखिर वाला जो टॉपिक है उसको खत्म करेंगे, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स है एक्सरसाइज वाले पार्ट में दी है वो खत्म करेंगे। अगेन ये जो चैप्टर है उसमें थियरी वाले पार्ट में जो ग्राफिकल मेथड से हमने जो डिराइव किए थे इक्वेशन, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी का जो सारा वेटेज है वो ज्यादा से ज्यादा दैट विल बी फ्रॉम न्यूमेरिकल्स। तो हमको एग्जांपल्स भी ठीक से सॉल्व करने हैं, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक से सॉल्व करने हैं, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो भी ठीक से सॉल्व करने हैं। जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसे जब ये सारे इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, देन आई विल प्रोवाइड यू विद अ वर्कशीट which will be based on the numericals that we did in this particular chapter, और फिर उसको सॉल्व करके आप मुझे सबमिट करेंगे और उसके जो डाउट्स है वो हम जूम मीटिंग में सॉल्व करेंगे। So within 2-3 lectures we'll be able to complete this chapter. Thank you.